Friends, now today I am going to start the next topic, elements, compounds and mixture of chapter 2 is matter around us pure. The meaning of element already I have discussed you. It means the substance which is made up of only one kind of particles or only one kind of atom, that is known as element. Element हम उनको कहते हैं जो कि सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं and it cannot be split up into two or more simpler substance by usual chemical method of applying heat, light और electrical energy. Element जो है उसको हम किसी भी केमिकल मेथड से, चाहे हीट, लाइट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू, हम इसको टू पार्ट्स में या डिफरेंट पार्ट्स में हम उसको स्प्लिट अप नहीं कर सकते हैं. So, an element cannot be split up into two or more simpler substance because it is made up of only one kind of atom. For example, this is a copper metal. ये कॉपर मेटल है जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉपर एटम से मिलके बने होते हैं. यहाँ पे देख रहे हैं आप डिफरेंट आपके कॉपर atoms present है, माने different copper atoms is combined to each other, then it will form the copper metal. So it cannot be dissociated by heat, light or electricity. Same example of iron. Here iron nail is made up of only one kind of iron atom. यहाँ पे आयरन नेल जो है वो एक ही टाइप के आयरन एटम से मिलके बने होते हैं, जिनको हम किसी भी सिंपल केमिकल मेथड से इसको हम डिफरेंट डिसोशिएट नहीं कर सकते हैं. सो iron metal is made up of only iron atom, so iron metal is also an element. So both are element because both are made up of only one kind of atom, copper and iron. Next topic is elements can be solids, liquid और गैस. जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ये सॉलिड्स भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड कार्बन एलिमेंट्स आर सॉलिड. यहाँ पे जो सोडियम और कार्बन है ये सॉलिड्स हैं. Second, mercury and bromine elements are liquid, whereas hydrogen and oxygen elements are gases. It means element can be found in solid state, liquid state or gaseous state. And only two elements, mercury and bromine, are liquid at room temperature. इसमें से जो mercury और bromine दो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में मिलते हैं. नाउ next one is this element is divided into three part: metals, non-metals and metalloids. element को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं: metal, non-metal and metalloids. So all the elements can be divided into three groups: metal, non-metal and metalloid. First of all we will see the meaning of metals. So a metal is an element that is malleable and ductile and conducts electricity. metal हम उन elements को कहते हैं जो कि malleable होता है और ductile होते हैं और जिनमें से electricity conduct होती है. For example iron, copper, aluminium, zinc, silver, gold, platinum. यहाँ पे देख लीजिए ये aluminium है, aluminium metal है, magnesium, zinc and silver. So all the metals are solid except one metal, mercury, which is liquid. हम देखते हैं कि जनरली जितने भी metals होते हैं वो maximum solid होते हैं except mercury. Mercury is a liquid at room temperature. So now we will discuss the properties of metal. तो जब हम metal की property देखते हैं तो सबसे पहला है metals are malleable. So what do you mean by malleable? Malleable, it means when metals can be beaten into thin sheets with a hammer. मतलब जब हम मेटल्स को हैमर्स के थ्रू जब हम थिन पतले पतले शीट्स में उसको तोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं malleable. और जितने भी मेटल्स होते हैं वो पूरे के पूरे malleable है बिकॉज इट कैन बी इजीली बीटन इनटू थिन शीट्स विद अ हैमर. फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर. आपने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो malleable है, इजीली इट कैन बी बीटन, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन अ ऑर्नामेंट्स. Now, next one is aluminium and copper metals are also highly malleable metals. इनमें से जो aluminium foils है are used for packing food items like biscuits, chocolates, medicine, cigarettes. आपने देखा होगा कि aluminium metal भी highly malleable होता है, जिसके कारण इसका जो यूज होता है वो आपने पैकिंग फूड में देखा होगा, जैसे बिस्किट्स के पैकेट्स में देखे होंगे, चॉकलेट्स में, मेडिसिन में. सो फर्स्ट
characters of metal is that malleability is an important characteristic property of metals. Second one is a metals are ductile. metals जो होते हैं वो ductile होते हैं. It means metals can be drawn into thin wires. मतलब metals जो है उसको स्ट्रेच करके थिन वायर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर आर अमंग द बेस्ट डक्टाइल मेटल्स. सो सेकेंड, डक्टिलिटी इज द अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेटल्स. सो थर्ड वन इज अ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं. इट मीन्स दे कंडक्ट easily heat and electricity. For example, silver metal is the best conductor of heat. आपने देखा होगा जितने भी हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, ये भी गुड कंडक्टर है हीट के. एंड द कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा मेड अप ऑफ कॉपर. जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं हमारे बर्तन जो होते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम के बने होते हैं क्योंकि ये हीट के गुड कंडक्टर होते हैं. नाउ silver metal is the best conductor of electricity. So the electric wires are made up of copper and aluminium. इसी तरीके से जो copper और aluminium है उनसे भी electric wires बनाए जाते हैं. Next one is the metals are lustrous are shiny. Lustrous का मतलब होता है कि जितने भी ऐसे elements जो कि shiny nature के होते हैं जिनमें एक चमक होता है, एक luster nature होता है. For example, gold and silver and copper are shiny metals and they can be polished. ये शाइनी मेटल्स है जिनके कारण इनका यूज हम पॉलिश में भी कर सकते हैं. सो मेटल ऑफ ए हैविंग शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर. ऐसे मेटल जिनमें एक चमक होती है, एक शाइनी कैपेसिटी होती है, उसको हम लस्टर कैपेसिटी कहते हैं, जिसके कारण इसका यूज हम ज्वेलरी और डेकोरेशन पीस में करते हैं. नेक्स्ट वन इज मेटल्स आर हार्ड. जितने भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं. इसलिए हार्ड होते हैं क्योंकि हमने देखा कि मेटल्स आर सॉलिड, तो जो भी सॉलिड्स होंगे वो हार्ड होंगे. नेक्स्ट, मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रांग. अब हार्ड हैं तो मेटल्स जो है वो जनरली स्ट्रांग भी होंगे. दैट्स वाई दे हैविंग हाई टेंसिल स्ट्रेंथ. जबकि हम ये देखते हैं कि जितने भी मेटल्स हैं कैन होल्ड लार्ज वेट्स विदाउट ब्रेकिंग. फॉर एग्जांपल आयरन भी एक मेटल है और इसके शीट्स बने होते हैं जो कि बहुत स्ट्रांग होते हैं और ये हाई टेंसिल स्ट्रेंथ वाले होते हैं. नेक्स्ट वन इज मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. हमने पहले ही देखा कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. ओनली वन मेटल मरकरी इज अ लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर. नेक्स्ट, मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट. जितने भी मेटल्स होते हैं क्योंकि वो सॉलिड होते हैं और सॉलिड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, तो मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. नेक्स्ट, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी. मेटल्स क्योंकि सॉलिड होते हैं और सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, दैट्स वाई मेटल्स हैव हाई डेंसिटी. फॉर एग्जांपल, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स हैव लो डेंसिटी. इनमें से जो सोडियम और पोटेशियम है इनकी डेंसिटी जो होती है लो होती है. दे आर लाइट मेटल्स. ये दोनों जो हैं वो लाइट मेटल्स है. नेक्स्ट है मेटल्स आर सोनोरस. सोनोरस मीन्स साउंड प्रोड्यूसिंग. तो मेटल्स जितने भी होते हैं वो सॉलिड होते हैं और सॉलिड में साउंड प्रोड्यूसिंग की कैपेसिटी होती है. सो ऑल मेटल्स आर सोनोरस. नेक्स्ट, मेटल्स यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर. जितने भी मेटल्स होते हैं उनके जो कलर्स होते हैं वो ग्रे या सिल्वर कलर के होते हैं एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड. सो कॉपर हैज अ रेडिश ब्राउन कलर वेयर एज गोल्ड हैज अ yellow color. So dear students, now I have explained the characteristic features of metal. So in our next class, I will explain the characteristic features of non-metals. Thank you.